عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تصحیح لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بಳ್ಳاری کی ویڈیو کیوں وائرل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بنگلور کی سڑکوں کی کچھ تصویریں دکھاؤں گا۔ میں آپ کو اس وقت وہ خبر بتاؤں گا جس خبر کو لے کر کے گوہاٹی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے شہریت ترمیم بل کو لے کر کے، اور اف ورسس بٹ نامی چینل پر اس وقت کارروائی کی بات کی گئی ہے دہلی پولیس کی جانب سے، وہ تفصیل دکھاؤں گا۔ خانہ کعبہ میں صحن مطاف میں طواف کے دائروں کی تعداد اس وقت 25 کر دی گئی ہے، 14 سے بڑھا کر کے۔ تو ایک تصویر کیوں وائرل ہوئی خانہ کعبہ کی، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور ایودھیا میں کرونا کا قہر برپا ہو گیا ہے۔ رام جنم بھومی سمیت کئی مندروں کے دروازے اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ دہلی حکومت نے ہمارے آکسیجن سلنڈر لوٹ لیے، ہریانہ کے وزیر کا سنسنی خیز الزام سامنے آیا ہے۔ ایک سعودی عرب کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی تھی وہ کتنی پرانی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، اور بھی تصویریں آ رہی ہیں، یہ تصویریں آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں جہاں پر ہمارا کام جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اس وقت گھر گھر جا کر کے، علاقے جا کر کے جو ہے دینے کا کام اور سلسلہ جاری ہے۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی امانتوں کو کہاں کہاں پہنچایا جا رہا ہے، کس کس طرح کی بستیوں میں پہنچایا جا رہا ہے، ان تصاویر کے حوالے سے آپ سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقداروں تک امانتیں پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کوششیں ہوتی ہے ہماری کہ جو امانتیں آئیں واقعی میں وہ حقداروں تک پہنچے۔ کڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے کشمیر کی گھاٹیوں میں اور جموں کی گھاٹیوں میں، اس لیے کہ گھر الگ الگ دور دور اوپر ہوتے ہیں اور وہ لوگ واقعی مستحق ہوتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ جو اس راستے میں کام کر رہے ہیں سیدھی بات کی ہماری ٹیم، میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس قدر انشاءاللہ بیماروں کی اور یتیموں کی، بیواؤں کی، مفلسوں کی اور معذوروں کی، مظلوموں کا خیال رکھنے کے لیے آپ دن دن بھر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انشاءاللہ اجر دے گا۔ ان لوگوں کی بھی جو محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو ذریعہ بن رہے ہیں سیدھی بات کی ناظرین کی جانب سے۔ اور یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا ناظرین گرامی، اس لیے کہ بستیاں کم نہیں ہیں، یہاں پر ضرورت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ خیر، آپ لوگوں سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ میسیج کر دیں، وہاں سے آپ کو تفصیلات مل دیں گی، وہاں آپ کو جو کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ بہرکیف دعائیں ہوئی ہیں، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں خبروں کی جانب۔ یہ سب آپ کی تسلی کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے کہ جو لوگ امانتیں دے رہے ہیں ان کو محسوس ہو، ان کو اعتماد ہو کہ آپ کی امانتیں ہم حقداروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں بಳ್ಳاری کی۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، ایک طرف کرناٹک کی سی ایم کووڈ کو پھیلتے دیکھ کر کے بہت الگ الگ طرح کی اس وقت قوانین نافذ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جمع ہونے سے، نماز پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہیں پر بಳ್ಳاری میں یہ بی جے پی کے لیڈران گھر گھر پہنچ کر کے ریلی کرتے ہوئے ووٹ مانگنے پر اس وقت تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس طرح سے اس طرح کر سکتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ یہ حالات ہے بھیڑ جمع کر کے بಳ್ಳاری میں اس وقت الیکشنز ہونے والے ہیں یہاں کی لوکل باڈی کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی گھر گھر پہنچ رہی ہے۔ اور کیا حال ہے یہاں پر دیکھ لیجئے بھیڑ کا۔ یہ حالات ہیں بಳ್ಳاری کے لوکل باڈی کے پولس کے لیے۔ اب ان کو کون بتائے، یہ وہی حکومتیں ہیں، ان کی حکمران اقتدار کی پارٹی کی یہ لیڈران ہیں۔ آئیے آپ کو بنگلورو میں اس وقت ماسک پہنانے کے لیے کس طرح کی بھیس بدل کر کے اس وقت اویئرنیس پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
सड़क सड़क पर इस तरह के जो है अलग अलग नज़ारे आपको देखने के मिलेंगे। लोगों को जो है मास्क के सिलसिले में बेदारी पैदा करने, दूरी इख्तियार करने, सोशल डिस्टेंसिंग की जो है अलग अलग हुलिये बना कर के जो है यहाँ पर इस वक्त जो है पूरी तरह से लोगों में बेदारी करने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें इस वक्त बेंगलुरु से बहुत ज़्यादा वायरल हुई। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ उस ख़बर की जानिब। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इधर कुछ दिनों से एक चैनल के सिलसिले में लगातार जो है एक बेदारी चलाई जा रही थी कि इसको रिपोर्ट करवाएं, इफ़ वर्सेस बट। ये चैनल इस कदर ख़तरनाक था जिसके जो है 1 लाख बल्कि 14 लाख से ज़ायद जिसके जो है 1,041,000 जिसके जो है सब्सक्राइबर्स थे, और इस कदर इस्लाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना ये वीडियोस अपलोड कर रहा था जिसकी इंतहा हो चुकी थी। इधर जहाँ पर इसके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से ट्विटर में इसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाया जा रहा था, तो वहीं पर जो है बाकायदा इसके ख़िलाफ़ केसेस भी दर्ज हो रहे थे। और दिल्ली में भी जो है इनके ख़िलाफ़ सैफ आलम जो एडवोकेट हैं उन्होंने 153A, 153B और 504, 5051, 5052, 595A के तहत जो है इंडियन पेनल कोड जो हैं उसके तहत जो है मामला दर्ज करवाया था और मांग की थी कि किसी भी सूरत में इस चैनल को बंद किया जाए। आज ख़बर आ रही है बल्कि एडवोकेट सैफ आलम ने ख़ुद जो है इस बात की इत्तला दी है कि जो है इस वक्त DCP साइबर मुंबई ने जो है पूरी तरह से मुतालबा किया है यूट्यूब से कि वो इस चैनल को हटा दें। ख़ुद उन्होंने जो है इनको ट्वीट करके इत्तला दी है। ख़बर आ रही है नाज़रीन गिरामी, जब तक ये चैनल पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता, आप लोगों को बाकायदा इस चैनल के ख़िलाफ़ जो है रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने का तरीक़ा आपको ख़ुद पता चलेगा। वहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, कोई वीडियो अपलोड करने के बाद वहाँ पर जो है राइट साइड में आपको सेटिंग का जो इलाका होता है वहाँ पर रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन होता है, उसको रिपोर्ट करना होगा। और उसमें रिपोर्ट की जब आप बटन दबाएंगे तो वहाँ पर जो है क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों शिकायत है, जब आपको सवाल किया जाएगा तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि जो एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ ये काम कर रहा है और कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है हेट जो है क्राइम में जो है मुलव्वस है, एक कम्युनिटी ख़ास को जो है निशाना बना रहा है। बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे यूट्यूब कंपनी को चला जाएगा और जिस कदर इसकी रिपोर्ट हो जाएगी उसी तरह से जो है उस चैनल को बंद करने पर जो है यूट्यूब बहरकैफ इस वक्त पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है। अब हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस कदर जो है, बल्कि तस्करा भी नहीं कर सकते और हम देख भी नहीं सकते इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की कार्टून्स बना करके वीडियो बनाता है और इसमें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये इफ़ वर्सेस बट नामी चैनल, आप भी कोशिश करें इसको रिपोर्ट करने की। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मस्जिद हराम में नमाजी और मोतमिरीन की तादाद को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदार इंतज़ामिया का कहना है कि सहन मताफ़ में तवाफ़ काबा के लिए मुकर्रर करदा ट्रैक्स की तादाद 14 से बढ़ा करके 25 कर दी गई है और तमाम ट्रैक्स को दोबारा तरतीब दिया गया है। बुज़ुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए 4 ट्रैक मुख्तस कर दिए गए हैं। वही नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और पसंद की जा रही है। और मस्जिद हराम में जो सफ़बंदी हुई उसकी तस्वीर ने नमाजियों के दिल चुरा लिए और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यह है मुसलमानों की डिसिप्लिन कहकर की जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। मस्जिद हराम में नमाजियों की तस्वीर को समाजी राब्ते वेबसाइट पर काफ़ी पसंदगी हासिल हुई और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर वायरल हुई। गुज़श्ता रोज़ मंगल को मताफ़ में मगरिब की नमाज के दौरान में ली गई इस तस्वीर ने सोशल मीडिया में सारिफिन की दिल मोह लिए। तस्वीर में बैतुल्लाह के गिरद सफ़ों की तंजीम का शानदार मुज़ाहरा और मंजर का जमाल नुमायाँ तौर पर नज़र आ रहा है और उसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामी उमूर के साथ आमा ने बैतुल्लाह के अतराफ़ मुतनव्वि खिदमात का एक जामे निज़ाम फराहम किया है। इसका मकसद एक मरबूत सेहतमंद माहौल में मताफ़ की सहन में आमद-ओ-रफ़्त और तवाफ़ के अमल को आसान बनाना है। इस दौरान कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए मतलूब एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। मताफ़ की सहन में बैतुल्लाह के अतराफ़ तवाफ़ को मुनज़्ज़म करने शहरी सिक्योरिटी मजमे के आम इंतज़ामिया की तरबियत याफ्ता अहलकार शरीक हैं। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तवाफ़ के दौरान हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात पूरी तरह कारबंद रहा जाए। मज़कूरा अहलकारों की मावनत के लिए रज़ाकारों की बड़ी तादाद भी साथ में मौजूद थी।
नाज़रीन, इस तरह आप लोगों को मालूम भी है कि सहन की धुलाई और सैनिटाइजेशन का अमल 5 मिनट के रिकॉर्ड दौराने में मुकम्मल कर लिया जा रहा है, लेकिन कल की ये तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में हंगामा मचाए हुए है और काबा शरीफ की इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा बल्कि मिलियंस की तादाद में इस वक्त ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि ये है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और मस्जिद में डिसिप्लिन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कहते हुए जो है यूरोपियन ममालिक में इस तस्वीर को शेयर भी किया जा रहा है। नाजरीन, उधर अयोध्या से खबर आ रही है कि अयोध्या में कोरोना का कहर बरपा हो चुका है। राम जन्मभूमि समेत कई मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, आलम यह है कि अयोध्या वाक़ दर्शन नगर के मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया है। वहीं पर बेसिक एजुकेशन अफसर के स्टीनू समेत 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अलावाजी अयोध्या के संत समाज के सरबराह कन्यादास और रिंग महल मंदिर के महंत राम शरण दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस मुश्किल माहौल को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर समेत अयोध्या के तकरीबन सभी बड़े मंदिरों के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए बंद कर दिए गए। अलावाजी अयोध्या शहर में मकामी छठी जुमेरात समेत इतवार को 2 दिन दुकानें बंद रहीं, जबकि सैनिटाइज़र का छिड़काव समेत शाम 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी समेत सभी अहम मंदिरों के दरवाजे इस वक्त पूजा करने के लिए बंद कर दिए गए। यानी यूँ समझिए कि संत और महंत हो या फिर इंतज़ामी अफसर, सभी लोगों को जो इस वक्त घर में रह कर के पूजा करने की जहाँ अपील की गई है, वहीं पर बहुत ज़्यादा राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे या फिर दीगर अक़ीदतमंदों की जो है कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से और बिलखुसूस मंदिरों के कई महंत और बहुत सारे संत भी जो है इस वक्त कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अयोध्या में एक किस्म का खौफ का माहौल बना हुआ है। वाक़िफ़ नाज़रीन गिरामी, इधर हरियाणा के वज़ीर सेहत अनिल विज ने दिल्ली हुकूमत पर सिलेंडर लूटने का सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद किया है। अब बताइए, हुकूमतें भी सिलेंडर लूटने लगे, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाया हरियाणा के वज़ीर ने। उन्होंने कहा, हम पर अपने सिलेंडर दिल्ली को देने का दबाव बनाया जा रहा है। हम पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे, फिर उसे किसी और को देंगे। कल हमारे ऑक्सीजन सिलेंडरों से भिड़े टैंकरों में फरीदाबाद जाने वाले टैंकर को दिल्ली हुकूमत की तरफ से लूट लिया गया है। मैंने तमाम टैंकरों की पुलिस के ज़रिए हिफाजत का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाइए रियासत में जिस तरह से कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और हर रियासत में ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया जा रहा है। ऐसे में अब रियासती हुकूमतें भी एक दूसरे पर लूट खसोट की जो है इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि तमाम हुकूमतों को मरकज़ी हुकूमत से जो है मुतालबा करते हुए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का मुतालबा होना चाहिए। नाज़रीन, उधर रियाज पुलिस ने एक वीडियो को पुरानी वीडियो करार दिया गया है। गुज़िश्ता 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही थी यहाँ पर, जिस पर पुलिस के मीडिया तर्जुमान मेजर खालिद अल किरदेस ने वाज़ेह किया कि गैर मुल्की मुक़ीमीन की मारपीट से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश वीडियो क्लिप 2015 की है, हालिया उससे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो क्लिप में एक सऊदी शहरी एक मुक़ीम शख्स दीगर कई गैर मुल्की मुक़ीमीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस फेल के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ उसी अरसे में कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है और उसी पुरानी वीडियो को इस वक्त फैला करके हालात ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि वो क्लिप बहुत पुरानी है, ये कहते हुए पूरी तरह से वजाहत कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं और वो है फॉरेन ट्रिब्यूनल के एक तरफा ऑर्डर को दरकिनार करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि शहरियत किसी शख्स का सबसे अहम हक़ है। इससे पहले हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि शहरियत साबित करने के लिए किसी शख्स को वोटर लिस्ट में शामिल सभी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात का सबूत देना ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा कि एक तरफा ऑर्डर पास करने के बजाय किसी शख्स की शहरियत के सवाल पर फ़ैसला उस शख्स को सुनने के बाद लिया जाना चाहिए। अगर आप उस शख्स को सुनते नहीं हैं, उसका क्या मुद्दा है, उसकी क्या शिकायत है, आप पूरी तरह से नहीं सुनते, तो फिर आप ये फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि वो जो है यहाँ का मुकीम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है। उसके मुताबिक फॉरेन ट्रिब्यूनल के एक तरफा ऑर्डर को दरकिनार करते हुए अदालत ने साफ तौर पर कहा कि शहरियत किसी शख्स का सबसे अहम हक़ है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और सुमित सेक्सिया की बेंच ने 8 अप्रैल के ऑर्डर में कहा कि शहरियत की बुनियाद पर कोई खुद मुख्तार मुल्क का मेंबर बन जाता है और मुल्क में कानून के ज़रिए फराहम करदा मुख्तलिफ हुकूक और खुसूसी इख्तियारात का हकदार बन जाता है। इस तरह अगर किसी शख्स की शहरियत के बारे में कोई सवाल उठाता है या उठता है तो हमारी राय में जहाँ तक मुमकिन हो मेरिट की बुनियाद पर और उस शख्स की बातों को सुनने के बाद फ़ैसला दिया जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये फ़ैसला बहुत अहम माना जा रहा है इस वक्त जो है शहरीत तरमीमी बिल को लेकर के कि आप अचानक इस तरह फ़ैसला नहीं सुना सकते जब तक कि जो है मुतल्लिका शख्स के बारे में आप पूरी तरह से उससे सुन करके उसके मामलात को, उसकी तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही फ़ैसला लिया जाएगा। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप उनसे मुलाकात होगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی